یہ دستخط کر دو اور تمہاری زندگی کے سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ماہین نے کانپتے ہاتھوں سے سامنے رکھے کاغذات کو دیکھا۔ سفید کاغذ پر کالے الفاظ کچھ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے خوابوں پر سیاہی پھیر دی ہو۔ یہ صرف 1 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال بعد تم آزاد ہوگی۔ ارسلان کی آواز میں وہی سختی تھی جس نے پہلی بار اس کا دل دہلا دیا تھا۔ اور اگر میں نے انکار کیا؟ وہ بمشکل بولی، تو تمہارے ابا کو جیل ہو سکتی ہے۔ ارسلان نے کرسی سے ٹیک لگا کر لاپرواہی سے کہا، جیسے کسی کی مجبوری اس کے لیے معمولی بات ہو۔ ماہین کے آنسو پلکوں سے نیچے اترنے لگے۔ اس نے اپنے ابا کو کمزور، بیمار اور قرض کے بوجھ تلے دبتے دیکھا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عزت خاک میں ملے۔ ٹھیک ہے، میں دستخط کر رہی ہوں۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، مگر ہاتھ نے قلم اٹھا لیا۔ ارسلان نے ایک لمحہ اسے دیکھا جیسے وہ فتح حاصل کر چکا ہو۔ مبارک ہو مسز ارسلان میر، تم اب میری بیوی ہو، 1 سال کے لیے، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا تھا۔ ہمارا رشتہ صرف کاغذ پر ہوگا، ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر ارسلان میر سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے اپنے محل نما گھر میں چلا آیا تھا، جہاں صرف اور صرف تنہائیاں رقم تھی۔ وہ وہاں آ کر کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹ گیا۔ ماہین سے نکاح اس کی مجبوری تھی، ورنہ وہ عورتوں پر اعتبار ہی کب کرتا تھا۔ اس نے شاور لینے کے بعد لائٹس آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا کہ اب زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کے لیے وہ جاگتا۔ دوسرے دن سے ماہین اس کی سیکٹری کی جاب شروع کر چکی تھی، لیکن وہ ماہین ارسلان میر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ماہین ملک دلاور کی حیثیت سے آئی تھی۔ وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی اور وہاں ارسلان میر نے اسے شادی کے لیے پروپوز کر کے اسے ایسی آفر دی تھی کہ وہ پیچھے قدم نہ لے سکی۔ اس کے گھر کے آگے روز قرض داروں کا مجمع لگا ہوتا تھا۔ اس کا باپ جوئے کا عادی تھا۔ وہ اس کی اپنی بازی بھی لگا چکا تھا، لیکن اسے اب تحفظ چاہیے تھا، اسی لیے اس نے اس نکاح کے ذریعے خود کو تحفظ دے دیا تھا۔ اگر وہ کہیں غائب بھی ہو جاتی تو لازمی تھا کہ ارسلان میر اسے ڈھونڈ نکالتا۔ وہ ارسلان میر کی آفس میں اس سے پہلے آ چکی تھی۔ اس کی تمام فائل سیٹ کر کے اس نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ ارسلان آفس میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر قدم رک سے گئے۔ پچھلے دن کا سما آنکھوں کے سامنے آیا جہاں اس نے ماہین سے نکاح کیا تھا۔ وہ بنا مسکرائے آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ماہین سے میٹنگز کا پوچھا، وہ اس کو ساری اپ ڈیٹس دینے لگی۔ وہ ہنکار بھر کر میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ ماہین کو سمجھ نہیں آیا وہ بھی جائے یا وہیں رکی رہے۔ تمہیں دعوت نامہ دوں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین نے جلدی سے قدم اٹھائے اور اس کے ساتھ پیچھے بھاگنے کے سے انداز سے آئی۔ وہ مغرور چال چلتا ہوا میٹنگ روم میں آیا جہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ ماہین نے سانس لینے کی کوشش کی۔ اسے اچانک بڑی پوسٹ ملی تھی کہ اسے کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ ارسلان میر میٹنگ کے دوران پانی کی بوتل اٹھانے لگا۔ ماہین نے بوتل لے کر اس کا کیپ کھولا اور ارسلان کی جانب بوتل کی۔ سب ہونک بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارسلان لب بھینچ گیا کہ بھلا یہ کیا طریقہ تھا۔ اس نے کچھ سرد لہجہ اختیار کیے بنا شکریہ کہا اور میٹنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میٹنگ کے بعد وہ دروازہ کھولے باہر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ماہین اندر ارسلان کی بکھری فائل سمیٹ رہی تھی جب اسے کسی نے متوجہ کیا۔ مجھ سے بھی یہ بوتل نہیں کھل رہی، کھول دو نا ذرا۔ سب نے اس مرد کی بات سن کر کہا لگایا۔ ارسلان نے سن کر لب بھینچے اور پلٹ کر میٹنگ روم میں آیا۔ کام جلدی کیا کرو، ابھی ہمیں دوسری میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ سب پر گہری اور سرد نگاہ ڈال کر لب بھینچے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہین کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے فائلز اٹھا کر ارسلان کے آفس میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی راکنگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ضرورت تھی میرے لیے پانی کی بوتل کھولنے کی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا تھا میرے آفس میں سارے کام کرنے ہیں۔ وہ پہلی بار اس جاب پر آئی تھی اور الٹا اس سے پوچھ رہی تھی، پھر تو تمہیں میری شرٹ کے بٹن بھی بند کرنے چاہیے۔
वो बोलकर अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलने लगा। माहिन की आंखें बाहर को आईं। ये जाती काम है, आप खुद करें। वो उसे पीछे करती जल्दी से भागी। अरसलान ने घूरते हुए उसे देखा और चेयर पर जा बैठा। माहिन ने जल्दी से उसका शेड्यूल तैयार किया और फाइल्स देखने लगी जो अगली मीटिंग के लिए दरकार थी। वो मीटिंग वगैरह से फारिग हुई। उसने पहली बार किसी बॉस की इतनी टफ रूटीन देखी थी। उसकी जिंदगी रोबोटिक जिंदगी थी कि माहिन चंद घंटों में थक गई थी, और वो इंसान न जाने ऐसी जिंदगी कब से गुजार रहा था। वो घर पहुंचते साथ ही चारपाई पर ढह गई। उसका बाप न जाने कहाँ गया था, उसे भी कोई परवाह नहीं थी। वो मजे से बिना खाना खाए सो गई थी। सुबह उठी तो उसे हैरत हुई कि कपड़े तब्दील किए बिना वो कैसे सो सकती थी। वो उठकर तैयार हुई और जल्दी से ऑफिस के लिए भागी। निकाह के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था, बस चंद लोगों का कर्जा उसने उतार दिया था। माहिन ऑफिस आई तो अरसलान मीर पहले से वहां मौजूद था। उसे देखकर लब भेंचे उसको अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दिखाने लगा। उसने बेआवाज सॉरी कहते जल्दी से अपनी जगह संभाली। उसे बस ने काफी देर करवा दी थी। वो अभी अपने काम कर रही थी कि उसे खाला की कॉल आने लगी। जी खाला। उसने फोन कान से लगाए, लैपटॉप स्क्रीन को देखा। आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, सुना है कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई है। उसकी खाला ने पूछा, वरना उसने किसी को बताया नहीं था। शायद ये काम उसके बाप का था। जी खालरा, सैलरी पैकेज अच्छा है यहाँ। उसने अरसलान मीर की जानिब देखते हुए निहायत मध्यम लहजे में कहा, लेकिन वो सुन चुका था। उसने नजरें उठाकर देखा नहीं था। वो अरसलान मीर के सामने वाली डेस्क पर बैठा करती थी। जी खाला, आप लोग 5 बजे के बाद आ जाइएगा, मैं घर में मिलूंगी। उसकी बात सुनकर न जाने अरसलान मीर के जहन में क्या समाया कि उसने माहिन को ढेर सारा काम दिया, कि उसका ओवर टाइम लग गया। वो अपने 1 हफ्ते का शेड्यूल उसी से बनवा रहा था और माहिन उसकी मीटिंग्स अरेंज कर रही थी। वो तो 9 बजे के करीब फ्री हुई तो गुस्से से अरसलान को घूरने लगी। वो लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। माहिन ने उसे जाने की इजाज़त चाही। मैं छोड़ देता हूँ, वो कहते हुए कुर्सी से उठते अपना कोट पहनने लगा। माहिन ने बिना घबराहट के उसकी पेशकश कबूल कर ली कि इतनी रात में बस स्टैंड पर खड़े रहना भी कहाँ मुनासिब था। वो घर के पास उतरी। उसकी खाला और खाला का बेटा गली के कोने पर ही मिल गया। अरसलान मीर गाड़ी के अंदर था। तुम्हारा बहुत इंतजार करके अब हम घर से निकले, खाला ने उस गाड़ी को पुरशौक नजरों से देखते कहा। वो जवाबन सर हिलाने लगी। चले आ जाएं, घर चलते हैं। आज ओवर टाइम लग गया था और मुझे कॉल करने का वक्त ही नहीं मिला। वो सहूलत से अपनी देर से आने की वजह बता रही थी। खाला का बेटा मुजम्मिल उसके साथ चलने लगा। काफ़ी खूबसूरत हो गई हो। उनके गली में दाखिल होते ही अरसलान चला गया था, जबकि उसके कज़न ने काफ़ी वक्त बाद उसे देखकर तारीफ़ की थी, और ये तारीफ़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हाँ, हमारी माहिन मिलती भी अपनी माँ में है, तो खूबसूरत भला क्यों ना होगी। खाला ने उसके हाथ से बैग लिया। माहिन को कोई गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वो चुपचाप घर में दाखिल हो गई। उसका बाप नशे में धुत ऊंधा पड़ा था। माहिन सर झटक कर आगे बढ़ गई। अभी ये बिल्कुल ठीक था और इतनी जल्दी इसने हराम मुंह से लगा लिया। खाला हैरान रह गई कि उसके जाते ही वो अपनी तलब मिटा चुका था। इससे भी बात करनी थी, लेकिन ये तो। वो नफी में सर हिलाती माहिन को बोली, खाला ये तो रोज का ही है, अब आदी हो जाएं। वो चादर उतारकर दुपट्टा लेते बाहर आई। तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि मुजम्मिल से तुम्हारी शादी हो जाए, इसी वजह से आज आना चाह रही थी। इस निकम्मे की जॉब का इंतजार कर रही थी। इसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, तो अब मैं मंगनी करना चाह रही थी। उन्होंने अपने बेसब्री की असल वजह बताई, जिसे सुनकर माहिन को धचका लगा। वो कैसे बताती कि उसका तो निकाह हो चुका था। खाला, 1 साल बाद आपकी बात मान लूंगी। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई। अरसलान 1 साल बाद शादी खत्म कर देगा, फिर वो किसी से शादी कर सकती थी। अभी हम बस मंगनी कर रहे हैं, उन्होंने इसका चेहरा चूम कर कहा। इसे इस घर से ले जाओ, कर दो शादी। इसका बाप उठकर चिल्लाते हुए बोलने लगा। माही ने अफसुर्दगी से बाप को देखा, जिसकी वजह से वो बुरी तरह फंस चुकी थी।
बस अभी मंगनी, निकाह, रुखसती जब तुम कहोगी जब हो जाएगी, वो इत्मीनान से बोली। अगले दिन ही वो मिठाई और अंगूठी लेकर आई थी और मुजम्मिल उसे अंगूठी पहना गया था। वो मना करती रह गई, लेकिन उसकी अब्बा और खाला ने उसकी एक ना सुनी। अगर जो अरसलान मीर को खबर हो जाती तो न जाने क्या होता। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। कोई भी उसकी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। वो ऑफिस में भी कामों पर ध्यान नहीं दे पाती थी और बॉस से डांट सुनती थी। मुजम्मिल की कॉल्स, मैसेजेस ने अलग से उसे पागल किया हुआ था। वो एक साथ 2 आदमियों के गिर्द चक्कर खा रही थी। दोनों ने उसे अपनी जागीर ही समझ लिया था। हमें कल एक मीटिंग के लिए जाना है, रेडी रहना, मीटिंग होटल में है, वो बोलकर माहीन की उड़ी हुई रंगत देखने लगा। कोई मसला है? वो पूछे बिना ना रह सका। असल में मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए कल नहीं आ सकूंगी, उसने बहाना बनाते हुए कहा तो वो सर हिलाते देखने लगा। मैं खुद ही सब हैंडल कर लूँगा, वो बोलकर अपने काम की जानिब मुतवज्जो हो गया। माहीन पूछना चाहती थी उसने 1 साल के लिए ही निकाह क्यों किया था, लेकिन वो पूछ ही ना सकी। माहीन ने अपना काम किया और खाला के बारे में सोचने लगी, जिन्होंने उसे कल तैयार रहने के लिए कहा था कि मुजम्मिल उसे कहीं लेकर जाने वाला है। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन खाला के बेहद इसरार पर उसे राजी होना ही पड़ा। वो जब घर पहुंची तो खाला उसके लिए कल के लिए सामान लाई थी। वो उन्हें मुस्कुराकर शुक्रिया कहने लगी। दूसरी सुबह वो देर से बेदार हुई कि उसने अरसलान से ऑफ ले लिया था। सुस्ती से दिन गुजार कर वो रात में तैयार होने लगी। ब्लैक रंग की सादा सी साड़ी और उस पर उसने सॉफ्ट सा मेकअप किया कि वो थोड़े से मेकअप से ही दूसरी दुनिया से आई कोई परी लगने लगी थी। माही ने ताज्जुब से खुद को देखा। पहले कभी वो यूं तैयार नहीं हुई थी और अब उसे अपना आप अलग और मुख्तलिफ लग रहा था। दिल का शोर बाहर के सन्नाटे में भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो उदासी से खुद को देखकर मुजम्मिल का इंतजार करने लगी। वो आया तो उसे कॉल करके बाहर बुलाया। वो गेट को ताला लगाकर बाहर निकल गई। कुछ मोहल्ले के लोगों ने उसे देखकर आंखें फैलाईं, लेकिन वो नज़रअंदाज किए गाड़ी में जा बैठी। गाड़ी नॉर्मल अंदाज से सड़क पर चलने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अम्मी और मैं गए थे तुम्हारी शॉपिंग के लिए। मुझे तुम्हारा साइज नहीं मालूम था, अम्मी ही जानती थी, इसी वजह से सब कुछ उन्होंने लिखा। वो मुस्कुराते हुए इसे बता रहा था। माही ने कोई जवाब नहीं दिया और भागती हुई सड़क को देखने लगी। ये दुनिया उसकी रफ्तार के हिसाब से नहीं चल रही थी। दोनों की स्पीड बहुत अलग थी, इसलिए माहीन का सांस फूल रहा था। वो इस जिंदगी से हारती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन जीने के लिए उसे वही सब करना था जो सब उसे करवाना चाह रहे थे। वो दोनों ब्लैक ड्रेस पहने हुए होटल में दाखिल हुए जहां बिजनेस मीटिंग्स हो रही थी। इतने सारे लोगों में माहीन को अपना आप अजनबी सा महसूस होने लगा। उसकी मुजम्मिल से इतनी जान पहचान नहीं थी जितना वो उसे शो करवा रहा था। खाला से भी महीनों तक बात नहीं होती थी, कोई उसे मिलता तक नहीं था, लेकिन अचानक खाला को अपनी भांजी पर प्यार आने लगा। वो सोचकर सर झटके मुजम्मिल के साथ खड़ी हो गई। वहां उसे अपने फ्योंसी के तौर पर सबसे मिलवा रहा था। वो झूठी मुस्कान सजाए सबसे हेलो हाय कर रही थी। अरसलान, ये तो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है ना? इसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था, फिर वो किसके साथ है? वो होटल में उस आदमी के साथ खड़ी कयामत लग रही थी कि अचानक वहां मीटिंग करता अरसलान मीर अपनी क्लाइंट के साथ आया। माहीन की इर्द गिर्द का मंजर देखते उसकी जानिब निगाह उठी तो उसको सांस लेना भूल गया। अरसलान ने जब्त से मुट्ठी बेंची, सुर्ख नजरों से घूरता हुआ बिना कोई जवाब तलब किए वहीं उसे छोड़कर चला गया। माहीन का वजूद खौफ से कांपने लगा। उसने बहुत मुश्किल से मुजम्मिल के साथ मुस्कुराकर वो इवेंट कवर किया था। 2 कश्ती की सवारी इंसान को हमेशा रुस्वा करती है। माहीन घर आई तो मेकअप धोकर साड़ी पहने ही वहां लेट गई। हील्स उसने गुस्से से कहाँ फेंकी थी वो नहीं जानती थी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो बेबसी से रो देने को थी। एक तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी तो दूसरी तरफ मुजम्मिल से मंगनी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई थी। वो दूसरे दिन दिल कड़ा करके ऑफिस आई। उसे अरसलान ज़रूरत से ज़्यादा सख्त नजर आया था। उसके ऑफिस में कदम रखते ही
उसके लफ्जों ने माहिन को छलनी कर दिया। मेरे सामने तो बड़ी पारसा बनती हो और कल साड़ी पहने किसी दूसरे मर्द के साथ। अरसलान का गुस्से से बुरा हाल था। उसने तनफ्फुर से कहते वो लफ्ज जबान पर लाने से रोका जो नाजेबा था। वो उठ खड़ा हुआ और ऑफिस के ब्लाइंड्स उसने गिरा दिए ताकि बाहर के लोग उन्हें ना देख सके। वो उसकी जानिब कदम उठा रहा था। वो आंखों में खौफ लिए उसका सर्द सख्त चेहरा देखती लबों पर जबान फेर रही थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, दूर रहो मुझसे। वो उसके निहायत करीब आया तो माही ने गुस्से से कहना चाहा, लेकिन उसकी हैबत से वो लरज रही थी। नहीं डार्लिंग, अब ये हुस्न तो मैं भी देखने का हक रखता हूँ। बीवी जैसी भी हो तो मेरी। वो तेजी से उससे दूर होने लगी, मगर अरसलान ने गुस्से से उसकी कलाई थाम ली। तुम सारी औरतें फरेबी क्यों होती हो? निकाह किसी और से, शादी किसी और से, और रातें किसी। वो अभी बोल रहा था, माहिन का हाथ बेसाख्ता ही उठ गया कि वो खुद भी शौक से अरसलान को देखने लगी। तुमने मुझ पर? वो मजीद सर्द लहजे में आए पूछने लगा। सॉरी, मैं। उसे सांस लेने में अचानक मसला होने लगा था कि वो उस पर हाथ कैसे उठा सकती थी। वो उसका बॉस था, अगर वो नौकरी से निकाल देता फिर? इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा माहिन। वो उसे झटके से छोड़कर चेयर पर जा बैठा। वो कांपते हुए उसे बेबस नजरों से देख रही थी, जिसने दोबारा उसकी जानिब नहीं देखा था। वो मुसलसल उसको देखती अपनी गलती का अजाला करने का सोच रही थी, लेकिन कैसे? उसने माहिन से ना कोई मीटिंग का शेड्यूल लिया, ना कुछ। उसके हाथ से आईपॉड झपट कर सब कुछ देखता रहा और काम करता रहा। माहिन को बेहद अफसोस हो रहा था। वो कैसे? आखिर क्या सोचकर उसने ये कहा था? माहिन ने अरसलान मीर को कॉल्स भी की थी रात के वक्त, लेकिन उसने नहीं उठाई। वो कमरे में बंद सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। चंद घंटों में उसके गुलाबी होंठ काले हो चुके थे। उसके इर्द गिर्द सिगरेट पड़ी हुई थी। वो समझती क्या है खुद को? वो गुस्से से सोच रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था माहिन को बहुत बुरी सजा दे डाले। उसने मुझे अपना असली शौहर समझ लिया है। मैं भी बताऊंगा अरसलान मीर को धोखा देना कैसा है। वो सोचते हुए एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने निकाह सिर्फ बाबा की वसीयत के लिए किया है। बस 1 साल, फिर मेरी जिंदगी में ये लड़की नहीं रहेगी। वो खड़े होते हुए शावर के नीचे खड़ा अपने दिल की जलन कम करने लगा। गीले कपड़े तब्दील किए बिना वो बिस्तर पर लेट गया। माहिन भी पूरी रात बेचैन रही। मुजम्मिल ने उसे कॉल की तो उसने नहीं उठाई। उसका ताल्लुक जिसके साथ मजबूत था, पहले उसे उसकी फिक्र थी। आज हम शॉपिंग पर चलेंगे। वो ऑफिस में थी जब उसे मुजम्मिल की कॉल्स आ रही थी। मुसलसल बजते फोन पर अरसलान ने उसे उठाने का कहा तो वो उठाकर मुजम्मिल की बात सुनकर लब भेंच गई। मेरे पास वक्त नहीं है, वो उसे कहकर कॉल रखने लगी। मामा आएंगी तुम्हें लेने, फिर यही जवाब उन्हें देना। वो गुस्से से कहकर कॉल बंद कर गया तो वो फोन को घूरने लगी। सारे मर्द एक जैसे थे, उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। उसे मंगनी के बाद वो अपनी मलकियत समझ बैठा था। उस मीटिंग को रीशेड्यूल करो। वो सोच में डूबी हुई थी। अरसलान की बात सुनकर चौंकी। बहरी हो गई हो? इस मीटिंग को रीशेड्यूल करो। वो गुस्से से भड़का। वो जी कहती कॉल करने लगी थी। उसकी दिमागी गैर हाजिरी पर अरसलान को सही किस्म की तब चढ़ी। वो शाम में वापस आई तो खाला वहां मौजूद थी। बेटा, मुजम्मिल ने तुमसे कहा था शॉपिंग का, तुमने मना कर दिया। खाला ने उसे अंदर दाखिल होते ही पहली बात यह की थी। कोई भी उसका हाल जानने में दिलचस्पी नहीं रखता था। जी खाला, मैं बहुत थक गई हूँ, वो बेजारी से बोली। उसे मुजम्मिल के साथ डेटिंग का कोई शौक नहीं था और वो जानती थी मंगनी का मकसद ही यही था कि मुजम्मिल उसे आज़ादी से घुमा फिरा सके। उसकी सोच बहुत आज़ाद थी। क्यों थकन हो रही है? जब तुम्हारा मंगेतर चाहता है तुम शॉपिंग पर जाओ तो क्या मसला है? उसके बाप ने बीच में मदाखलत की। वो लब भेंच कर सुनने लगी कि अब वो भी मुजम्मिल के साथ मिल चुके थे। अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसे अब गुस्सा आने लगा था। खाला, बाबा, अरसलान, मुजम्मिल, ये सब एक जैसे थे।
और वो हैंडल बनी उनके कंट्रोल में थी। उसके अब्बा गुस्से से उठे। क्या कहा? जबान चलाएगी अब हमसे? इसकी माँ भी बहुत नाफरमान थी और ये भी बहुत नाफरमान है। उसके अब्बा ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और उसका सर बाल छुड़ाने के चक्कर में बुरी तरह दीवार से जा लगा। अबरू की तरफ से खून रिसने लगा। खाला फौरन आगे आई, लेकिन अब्बा ने उस पर दोबारा कहर बरसाया। वो बेजान होने लगी। उसका अब होंठ फट गया था। खाला ने बड़ी मुश्किल से उसके अब्बा को कंट्रोल किया। इससे कहो तैयार हो जाए और मुजम्मिल से कहो इसे शॉपिंग पर क्या जहां ले जाना चाहता है ले जाए। अब्बा की बात सुनकर माहीन ने शौक से उन्हें देखा। वो उसे कोई लावारिस समझकर एक गैर मर्द को उसका कंट्रोल दे रहे थे। मैं कोई नामहरम से रिश्ता नहीं। उसके अब्बा पलट कर उस तक आए थे, लेकिन मुजम्मिल अंदर दाखिल होकर उनका हाथ थाम चुका था। बस करें खालू, वो उन्हें रोकते हुए बोला। आप जाएं, मैं माहीन को साथ ले जाऊंगा, वो नरमी से बोला। माहीन उठकर लंगड़ाते हुए कमरे में आ गई। मुजम्मिल ने खालू को रकम देकर अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस पर वो अपनी अयाशी करने में मसरूफ थे और माहीन पर गुस्सा कर रहे थे। वो माहीन के पास कमरे में आया। माहीन तैयार हो जाओ, बाहर जाओगी तो फ्रेश फील होगा। वो उसे तसल्ली के बोल बोलने के बजाय बेबस करने आया था। माहीन ने वॉशरूम की जानिब राह ली। फिर वो शॉपिंग पर आए। उसने माहीन के जख्मों को देखते हुए भी उन पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। माहीन बुझे दिल के साथ उसके साथ फिरती रही। आज फिर माहीन की किस्मत खराब थी। अरसलान ने उसे दूर से ही मुजम्मिल के साथ लिफ्ट में दाखिल होते देख लिया था। माहीन उसे अपनी दिमागी गैर हाजिरी के सबब देख ना सकी थी। वो उसे घर छोड़कर चला गया। उसका बाप आज घर पर नहीं था। इससे बेहतर मौका रोने के लिए नहीं था। वो सहन में सारे शॉपिंग बैग्स फेंक कर रोने लगी। उसकी सिसकियां बंद गई थीं। अगले रोज उसका चेहरा मुतरनम सा था। उसने कंसीलर लगाकर जख्म छुपाने की नाकाम सी कोशिश की थी। दोपहर के वजू के वक्त उसे भूल गया कि वो कंसीलर लगाकर आई थी और अरसलान मीर की आंखों ने उसके जख्म देख लिए थे। वो बिना कुछ कहे दराज से मरहम निकालकर उसके पास आया। वो उसको गर्दन उठाकर देखने लगी। उसने बिना कुछ कहे इसके जख्मों पर उंगली से मरहम लगाया। उसका दिल चाहा रोना शुरू कर दे। इसकी जरा सी तवज्जो माहीन को जज्बाती कर गई थी। उसने नहीं पूछा किसने किया, क्यों किया। वो बस आया और मरहम लगाकर चला गया। वो सख्त था या नर्म, वो समझ ना सकी। उनके दरमियान न जाने क्यों खामोशी की दीवार आ गई थी। अरसलान ने उस दिन शॉपिंग मॉल का जिक्र नहीं किया और ना ही कुछ पूछा। वो बस माहीन को देखता और उसके दिल तक रिसाई पाकर सब कुछ जान लेने की कोशिश करता था। लेकिन माहीन का कल्ब इतनी आसानी से जाहिर होने वाला बिल्कुल नहीं था। माहीन ने नजरें उठाकर अपना बैग लेना चाहा। उसकी निगाहें अरसलान की खोजती नजरों से टकरा गई कि वो सटपटाकर नजरें फेर गई। वो ऑफिस वैन में वापस चली गई थी। घर आई तो फिर वही तमाशा लगा हुआ था कि मुजम्मिल ने आज यहाँ आना है। वो उसे बीवी की तरह ट्रीट कर रहा था। इससे पहले ना कहने पर उसका बाप कुछ गलत करता, वो तैयार होकर मुजम्मिल के साथ आ गई। उसकी लोकेशन अरसलान ट्रेस कर रहा था। वो जब जब उसके साथ कहीं होती अरसलान वहीं पहुंच जाता। माहीन को खबर तक नहीं थी अरसलान अपनी मलकियत में आई चीज़ों को किस तरह देखभाल करता था। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। माहीन सिर्फ उसके सवाल के जवाब देती थी। वो दूर से ही काफ़ी बातूनी दिखाई दे रहा था। माहीन का चेहरा हर जज्बे से आरी था। उसके उठने पर अरसलान ने अपने चेहरे के गिर्द अखबार करके खुद को छुपाया। वो वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था माहीन की जिंदगी में कैसे झांके। अरसलान बदला भूले अब अपनी बीवी पर रिसर्च कर रहा था। एक रात 12 बजे मुजम्मिल ने आकर उसे साथ चलने का कहा। माहीन ने इनकार कर दिया, जिस पर उसे खाला और बाबा की डांट का सामना करना पड़ा। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। वो रोती दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन उसका बाप पैसों के आगे बेहिस हो चुका था। मुजम्मिल मुस्कुराती नजरों से इसे देख रहा था। चलें? वो उसके बोलने पर उसे गुस्से से देखने लगी। मैं तुम्हारे साथ मंगनी तोड़ना चाहती हूँ, वो गुस्से से फिंकारी। जब मुजम्मिल ने हंसकर उसकी गर्दन अपने हाथों में लेकर
गाड़ी में धकेला। तुम कोई नहीं होती मंगनी करने और तोड़ने वाली। तुमसे मंगनी करते हुए हमने पूछा था जो अब तुम्हारी मर्जी मैटर करती है। वो पूछ रहा था। उसकी गर्दन में एक बैग लटक रहा था जिसमें उसका मोबाइल और ऑफिस कार्ड्स थे। वो अपने अब्बा के खींचने पर जल्दी से बैग गर्दन में लटका गई थी कि उसे किसी तरह अरसलान मीर को बताना था। चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? मैं ऐसा ही हूं। पहले हम शादी से पहले रिश्ता कायम करेंगे, फिर हम शादी करेंगे। वो आंख दबाकर बोला। मुजम्मिल समझ रहा था वो किसी यूरोपीय मुल्क में रहता था जहां शादी से पहले कुछ भी कर लो और फिर शादी कर लो। माही ने चुपके से फोन निकालना चाहा, लेकिन मुजम्मिल ने उसका हाथ थामकर लबों से लगाया। वो जल्दी से हाथ पीछे करने लगी। तुम्हारे बाप से कह दिया है 1 साल तक शादी से पहले तुम्हें अपने पास रखूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। वो मुस्कुराती नजरों से इसे देखते हुए बोला तो माहिन के कदमों तले से जमीन खिसकने लगी। वो अपार्टमेंट के एक कमरे में आया था। माहिन को वहां छोड़कर वो न जाने कहां चला गया। माही ने जल्दी से मौका पाकर अरसलान को कॉल करनी चाही, लेकिन कॉल रिसीव ना हुई। माही ने मैसेज भेज दिया, प्लीज हेल्प मी, लोकेशन ट्रेस करके यहां पहुंच जाएं प्लीज। वो घबराहट से मैसेज टाइप कर रही थी। मुजम्मिल के आते ही उसने मोबाइल छुपा दिया। शावर लेकर थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हें थका हुआ देखना नहीं चाहता। उसकी बेहुदा बातों से माहिन का दिल मरने का था। तुम ये सब करके जानी बन रहे हो, वो गुस्से से चीखी। वटएवर, मुझे इन सब बातों से उलझा कर मत सिखाओ। मैं जो चाहता हूं वो हासिल करके रहूंगा। वो उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ता बोला तो माही ने पीछे होते उसके सर पर अपना बैग मारा। स्वीट हार्ट, वो हंसकर उसका बैग कैच किए फेंक चुका था। माही ने रोते हुए अब इल्तिजा करना शुरू कर दी थी। वैसे तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हारा बाप सौतेला है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे असली बाप के मरने पर इस शख्स से शादी कर ली थी, लेकिन तुम्हारी माँ जानती नहीं थी वो एक बदकिरदार इंसान है। और फिर रफ्ता रफ्ता ये गम तुम्हारी माँ को खा गया कि उसने बुरा मर्द चुना। बचपन में भी इसने तुम्हें बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने बचा लिया। मेरी माँ से रिक्वेस्ट की कि तुम्हें अपने पास रख लें, लेकिन मैं राजी नहीं था। और फिर अब तुम्हें देखकर दिल लालची हो रहा है, वो कह कहा लगाकर बोला। माहिन रोने लगी। उसे ये सब मालूम ही नहीं था। वो सौतेले बाप के लिए ये सब झेल रही थी। उसने सोच लिया था यहां से निकलकर सीधा कहीं और चली जाएगी। इससे पहले कि वो माहिन के करीब जाता और कुछ गलत कर पाता, अरसलान ने दरवाजा तोड़ दिया और माहिन उसे देखकर बेसाख्ता भागती हुई उसके गले से लग गई। मुजम्मिल हैरानी से उसे देख रहा था। मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है? वो गुस्से से आगे बढ़कर उसे मारने लगा। मुजम्मिल हैरत ज़दा सा बीवी लफ्ज को सोच रहा था। बीवी? वो माहिन को देखकर पूछ रहा था। इसे गिरफ्तार कर लें और कभी बाहर मत आने दें। पुलिस भी पीछे दाखिल होती मुजम्मिल को पकड़ चुकी थी। वो माहिन को गालियां बकने लगा। अरसलान ने उसकी नाक पर मुक्का जड़ा। वो गुस्से से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस हथकड़ी लगा चुकी थी। तुम यहां क्यों आई? वो गुस्से से इस्तफसार कर रहा था। माहिन अभी तक उसके सीने से लगी कांप रही थी। मैं नहीं आई, बाबा ने घर से निकाल दिया, मुझे मारा भी। वो सिसकी भरती हुई उसके सीने में छुप जाना चाहती थी। इस चक्कर में अरसलान तवाजुन कायम नहीं रख पा रहा था। वो उसके सीने के अंदर बसने का इरादा रखती थी। माहिन, होश में आओ, मैं गिर जाऊंगा। वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे भेंचे जा रही थी, और फिर वो दोनों कालीन पर जा गिरे। माहिन के बाल अरसलान के चेहरे पर साया फिगन हो गए थे। अब खुश? वो लब भेंचे नीचे पड़ा पूछ रहा था। आंसू अरसलान के चेहरे पर गिरे। वो सॉरी कहती उठने लगी। अरसलान ने झटके से उसे अपने ऊपर डालकर पलटी खाई। अब माहिन कालीन पर थी। तुम्हारे पास ये निकाह था, इसको बुनियाद बनाकर तुम अपनी जिंदगी से बाहर आ सकती थी। फिर क्यों बाप का जुल्म सहती रही? और ये लड़का कौन था? मैं आज ही तुमसे हिसाब करने आ रहा था कि मेरे निकाह में होते हुए तुमने इससे मंगनी कैसे कर ली।
लेकिन तुम्हारा मैसेज देखकर यहाँ चला आया। बताओ क्यों की मंगनी? वो उसके चेहरे पर झुका पूछ रहा था। वो इन्फो निकाल रहा था जब उसे पार्टनर ने बताया वो लड़की इनके मैनेजर की फियांसी है। वो जब से गुस्से से पागल हो रहा था और माहिन से बास पुर्स करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसका मैसेज देखकर वो लोकेशन पर चला आया और सामने का मंजर ज्यादा जहरीला था। बाबा और खाला ने जबरदस्ती अंगूठी पहना दी। उस दिन भी बाबा ने बहुत मार कर इसके साथ भेजा। मना करती तो मार भी खाती। आप सब लोग एक जैसे हैं। आपने निकाह करके तमाशा बनाया, सौतेले बाप ने बेटी को पैसे के लिए तमाशा बनाया, उसने हराम रिश्ता जोड़ने के लिए तमाशा बनाया। आप सब एक जैसे हैं। वो चीखते हुए चेहरा हाथ में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी थी। अरसलान ने लंबी सांस ली। वो अभी भी उस पर झुका हुआ था। मुझे यहीं रखने का इरादा है? वो उससे पूछ रहा था। माही ने नासमझी से चेहरे पर से हाथ हटाकर उसे देखा। माही ने अपने दोनों पांव उसके पांव के ऊपर बांधे हुए थे। उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी से खोले, उठने लगी। अब तुम वहां नहीं जाओगी, मेरे घर चलो। वो शर्ट ठीक करते हुए बोला। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि मैं? वो हैरानी से आंसू साफ करते हुए बोली। मेरे घर में मेरे सिवा कोई नहीं है, किसे बताओगी कि तुम मेरी बीवी हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। माहिन ने ओ कहते उसे देखा। चलें? उसने पूछा और वो इस बात में सर हिलाते उसकी हम कदम हो गई कि जब भी तहफ्फुज मिला उस अजनबी शख्स से मिला। उसका घर आलीशान था। माहिन की नजरें चुंधिया गई थी। वो उसे आगे चलने का कहते पीछे चलने लगा। ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहां रहो और कुछ दिन तक ऑफिस को भूल जाओ। वो बोलकर अपने कमरे में जाने लगा। क्या आप नई असिस्टेंट रखेंगे? वो बिना मुड़े मुस्कुराया था। माहिन को जेलस फील हो रहा था। अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं, उसने बिना पलटे कहा, और वो अपना मुस्कुराता चेहरा उसे दिखाने का रवादार बिल्कुल भी नहीं था। माहिन उसके दिए गए कमरे में आ गई। मुझे इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, क्या मालूम अरसलान को मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो सोचती हुई उसका कमरा देख रही थी, लेकिन कैसे वो उसके करीब होने की कोशिश करे। ये कॉन्ट्रैक्ट निकाह उसके लिए हमेशा कंफर्ट बन जाए। उसे अरसलान का तहफ्फुज हमेशा के लिए चाहिए था। वो सोचती हुई 3 बजे सो गई थी। अरसलान ने उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी। दूसरी सुबह अरसलान उसे बिना मिले चला गया। वो देर से उठी, लाउंज में शॉपिंग बैग देखकर अंदर झांका। लेडीज कपड़ों के अलावा लेडीज सामान देखकर उसके गाल तप उठे। वो गालों को थपथपाकर उठकर शॉपिंग बैग लिए कमरे में आ गई। उसे नए कपड़ों की जरूरत थी। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। अरसलान और माहिन में जरूरत के तहत बात होती थी। उस दिन के बाद से अरसलान ने माहिन से नजरें चुराना शुरू कर दी थी। उसे लगता था माहिन का सरापा उसे उलझा देता है। वो बचने की कोशिश करता था, लेकिन माहिन अनजाने में उसके दिल में अपने भोलपन और रूप से हलचल मचा चुकी थी। वो इस रिश्ते को शुरू करने और अरसलान की तवज्जो हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत तैयार होकर उसके सामने आने लगी थी। अरसलान जो पहले ही परेशान था, मजीद परेशान हो जाता। उसने एक स्टाइलिश ड्रेस अरसलान का दिया हुआ उठा रखा था। वो आज रात पहन लिया। वो लाल रंग की फ्रॉक थी, थोड़ी स्टाइलिश सी थी। माहिन को पसंद भी आई थी, लेकिन उसने कभी बिना दुपट्टे वाले ड्रेसेस नहीं पहने थे। वो काफी देर सोचती रही पहने या नहीं। इनको यहाँ रहते 2 माह होने को आए थे। दोनों में से किसी ने भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया था। अरसलान दिल में हलचल महसूस करके मोहताज सा रहने लगा था, और माहिन को ये रिश्ता निभाना था। इसीलिए वो फ्रॉक पहनकर रेडी हो गई। दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। अरसलान के सामने जाने का सोचते ही उसकी रूह फना हो रही थी। गाड़ी की आवाज पर वो कमरे से बाहर ही नहीं आई थी, वरना वो इस्तकबाल जरूर करती। वो हैरत सदा सा अंदर को बढ़ता गया, फिर माहिन के कमरे की जानिब आया। उसे खदशा हुआ कहीं बीमार ना हो। दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो आंखें हैरत से फट गई। वो सुर्ख रंग का फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़े,
हल्का सा मेकअप किए हसीन लग रही थी। अरसलान चलता हुआ उसके सामने जा रुका, जबकि उसने आंखें मीच ली। ये सब मेरे लिए है? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? वो खोए से लहजे में पूछ रहा था। उसकी बीवी उसे पागल कर देने के सारे तरीके जानती थी। वो अंगूठा उसके लबों पर फेरने लगा। माहिन की सांसें रुकने लगी। वो झुककर उसके चेहरे के करीब चेहरा किए खड़ा उसे तकने लगा था। माहिन नर्वी सी सर झुकाए खड़ी थी। क्या तुम चाहती हो मैं कोई दिलचस्प हरकत करूं? वो चेहरा बिल्कुल उसके सामने किए पूछ रहा था। माहिन ने अपना चेहरा ऊपर किए उसे देखा, फिर चेहरा झुका दिया और हाँ में सर हिलाने लगी। अरसलान मुस्कुराहट रोके उसके करीब गया तो माहिन बेसाख्ता पीछे हुई। क्या हुआ, तुमने ही तो इजाजत दी है? वो मुस्कुराहट रोके उससे पूछ रहा था, जबकि माहिन को उसके इतने करीब होने के सबब कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, वो हाथ मसलते बता रही थी। अरसलान लंबी सांस भरकर सीधा हुआ। कुछ समझ भी आता है कि नहीं? वो पूछकर उसे देखकर पलट गया। वो उसे देखता था तो उसे देखते रहने की ख्वाहिश दिल में बढ़ती जाती थी। उसे डर था कहीं वो खुद का कंट्रोल ना खो दे। एक तो वो उसकी बीवी थी, दूसरा वो नहीं जानता था माहिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को असल में बदलना चाहती भी है कि नहीं। वो रोज माहिन के मामले में खुद से लड़ता था। वो शायद उस रिश्ते को कबूल करने लगा था, इसलिए आज उसने माहिन से ठीक तरह से बात की। रात डिनर टेबल पर भी माहिन ने वही ड्रेस पहना हुआ था और अरसलान की नजरें भटक भटक कर उस पर जा रही थी। वो उसकी नजरों से ही दोहरी हो रही थी। उसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। नर्वस नहीं हो, मैंने खा लिया है, तुम अकेले आराम से खा लो। वो समझकर उसे बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। माहिन की जान में जान आई। उसे भूख लगी हुई थी। दोपहर में भी उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसके जाते ही पुरसकून खाना खाने लगी। क्या वो इस रिश्ते को मौका देने के लिए सब कर रही है, या फिर ये एक धोखा है जिसके पीछे अरसलान मीर चलने वाला है? माहिन अपनी हरकत पर शर्मिंदा सी बाहर ग्रासी ग्राउंड में बैठी अब कुछ भी नहीं करने का सोच रही थी। पता नहीं वो उसे क्या समझता होगा। माहिन लब भेंचे कोफ्त से सोच रही थी। हेलो, वो आकर उसके सामने बैठा। मैं मीटिंग के लिए यूके जा रहा हूं, मेरे साथ चलोगी? वो पूछकर देखने लगा तो वो हैरानी से उसे देख रही थी। लेकिन मेरा उसका मसला नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिजनेसमैन की बीवी हो, चल रही हो फिर? वो उससे पूछ रहा था। वो उसे जानना चाहता था। अगर दिल ने कहा था उसे मौका देना चाहिए तो उसे जानना बहुत जरूरी था। जी चलूंगी, उसने इस बात में सर हिलाया। वो पहली बार कहीं दूसरी जगह जा रही थी, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश थी। वो यूके आ गए। माहिन सब जगहों को हैरानी से देख रही थी। वहां से मेरे लिए जरा कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, मैं जरा ये कॉल सुन लूं। वो उसकी जानिब कार्ड बढ़ाकर बोला था। उसे एक जरूरी कॉल मौसूल हुई थी। वो बात करने लगा। माहिन शॉप से खाने पीने की चीजें ले रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर सीधा अरसलान की गाड़ी से हिट हुआ। माहिन की चीख निकली और वो सब सामान फेंककर रोती हुई कार की जानिब आई। कार धमाके से दूर जा गिरी। माहिन शॉक्ड होकर बैठ गई और गाड़ी को देखने लगी। वो ऊंची आवाज में रोती हुई लोगों से कह रही थी, अरसलान को बचा लें, इसमें मेरा शौहर है। सब उसे देखते हुए समझा रहे थे कि वो गाड़ी में जल गया होगा। माहिन बार बार गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। वो ज्यादा देर होश में ना रह सकी और बेहोश होती जमीन बोस हो गई। अरसलान कुछ देर बाद वहां आया। लोगों का मजमा देखकर अपनी गाड़ी की हालत देखते माहिन को ढूंढने लगा। वो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। माहिन, वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने शौहर का सदमा लेकर बेहोश हो गई है, एक खातून ने अफसोस से बताया। मैं इसका शौहर हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब कैसे हुआ? वो हैरत से गाड़ी और ट्रक को देख रहा था। अचानक शायद इस ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और वो उस गाड़ी से टकरा गई। खातून ने सब मंजर अपनी आंखों से देखा था, उसे बताने लगी। और ये लड़की अरसलान चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। बहुत दर्द में थी बच्ची।
वो बोली तो अरसलान ने माहिन को गोद में उठाया और अस्पताल भागा। पुलिस गाड़ी का जायजा ले रही थी। ड्राइवर मर चुका था। वो अस्पताल आया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अरसलान परेशानी से टहल रहा था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो माहिन चीखते हुए रो रही थी। मैं ठीक हूँ माहिन, ये देखो। वो उसके सामने बैठे उसका चेहरा थामे उसे बताने लगा। वो बेसब्री से उसके सीने पर हाथ फेरती उसका चेहरा देख रही थी। अरसलान को उस पल अदराक हुआ कि वो माहिन के खालिस जज्बों को जांचने चला था। वो औरत तो उससे मोहब्बत और इज्जत देने में बहुत आगे थी। माहिन, उसने हाथ थामकर उसे पुकारा। आई एम सॉरी, वो नदामत से बोला। मैं तुम्हें यहाँ जांचने के लिए लाया था कि तुम्हें अमीर आदमियों से मिलवाऊंगा कि तुम मुझे उसके लिए छोड़ दोगी कि नहीं। उसकी बात सुनकर माहिन साकित रह गई। आई एम सॉरी माहिन, मेरी माँ ने मेरे बाप को दौलत के लिए छोड़ा था और मुझे हर औरत दौलत की पुजारी लगती है। गोल्ड ड्रैगर। वो शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत की थी अरसलान। आपका तहफ़्फ़ुज़ मुझे पिघला गया था कि मैं बिखरी हुई नामुकम्मल सी लड़की किसी की केयर भी पा सकती हूँ, और आपने मुझे गोल्ड ड्रैगर समझ लिया। वो आंखों में नमी लिए बोली थी कि अरसलान ने उसका हाथ थामकर नफ़ी में सर हिलाया। आई एम सॉरी माहिन। वो उसे माफ़ी तलब कर रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने माफ़ी मांगी थी। सॉरी? इतना बड़ा इल्ज़ाम और सॉरी? वो उसके हाथ झटक कर उठ गई। वो पैदल ही अपार्टमेंट तक आई थी। अरसलान उसके पीछे चल रहा था। वो रो रही थी। अरसलान ने लब भेंचकर उसे कमरे में रोते हुए देखा। बारिश नरम धुनों में बरस रही थी। खिड़की से अंदर आती बूंदें माहौल में खामोशी से बिखर रही थी। माहिन सोफे पर बैठकर खामोशी से बाहर देख रही थी। चेहरे पर नाराज़ी थी और आंखों में खफगी। अरसलान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। वो उसके करीब आया। ये तुम्हारे लिए है, थोड़ी सी मिठास, शायद तुम्हारे मूड में भी घुल जाए। माही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कप थामने से भी इनकार कर दिया। अरसलान ने आहिस्ता से मेज़ पर कप रखा और पास बैठ गया। माहीन, नाराज़ हो जानता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात सुन लो तो शायद दिल हल्का हो जाए। मैं मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन मेरी पोजीशन भी तो समझो। वो उसकी जानिब देखते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको जो समझना है समझते रहे। आपको अपना मानना गलती थी। वो रूठे लहजे में सू सू करती बोली। अरसलान ने उसका हाथ थामा, लेकिन वो झटक कर अलग हो गई। तुम झटक सकती हो मेरा हाथ, पर दिल कैसे झटकोगी? वो तो बस तुम्हारे ही नाम की धड़कन सुनने का आदी है। माहिन की ना चाहते हुए भी पलकें लर्जी, मगर वो अब भी चुप रही। अरसलान ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से मोड़ा ताकि वो उसकी आंखों में देखे। माहिन, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला तुम हो। अगर कभी मेरी अना और गुस्से ने तुम्हें दुख दिया तो यकीन करो वो मेरे दिल की नादानी थी। तुम्हारे लिए महज मोहब्बत है। माही ने आहिस्ता से नजरें झुकाईं। दिल नरम होने लगा था। तुम वाकई मेरी इतनी फिक्र करती हो? तुम्हें पता है मेरा दिल किया तुम्हें बोल दूं। माहीन, आई लव यू। वो उसको सीने से लगाते बोला। माहीन पिघलने लगी। माही ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और एक मध्यम मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। बस अब नाराजगी खत्म। अरसलान ने शोखी से पूछा, शादी का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? ये सवाल उसे बहुत तंग करता था। बाबा ने वसीयत की थी, अगर 30 साल में शादी ना की तो उसे बिजनेस लेकर चैरिटी कर दी जाए। वो इसीलिए कि मैं औरतों से नफरत करता था। बाबा को लगा मैं शादी नहीं करूंगा। वो मुस्कुराकर बताने लगा। देख लें कौन गोल्ड ड्रैगर है। उसने संजीदगी से कहा तो अरसलान का कहा गूंजा। कह तो वो ठीक रही थी। अपनी शानो शौकत बचाने के लिए निकाह किया था ताकि सबूत दिखा सके। कह तो तुम ठीक रही हो मिसेस अरसलान मीर। वो मुस्कुराकर उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसके बाल सहलाने लगा। मुझे तुमसे पता है कब मोहब्बत हुई थी? वो उसकी जानिब देखते बोली। कब? अरसलान ने दिलचस्पी से पूछा तो वो मुस्कुराई। जब आपने मेरे जख्म पर मरहम रखा था। सबने मेरा जख्म देखा था, लेकिन वाहिद सिर्फ आप थे जिसने उस पर मरहम रखा था। और उस पल मुझे लगा
अगर आप मेरी जान भी मांग लेंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। वो नम आंखों से बोली। अरसलान ने उसकी आंखें चूम डाली कि वो इतने से उससे मोहब्बत कर बैठी थी और वो अभी तक दिल की बातें दिल में दबाए हुए मशकूक नजरों से उसे देखता था। अरसलान ने उसके बालों को खोलकर आगे फैला दिया। अगर मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम तैयार हो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए? वो उसकी आंखों में झांक कर पूछने लगा। माहीन शर्माने लगी। क्यों नहीं? वो कभी उसकी ख्वाहिश रद्द करने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए उठकर फौरन भागी। अरसलान ने मुस्कुराकर आंखें बंद करके खोली और पुरसकून सांस ली कि अब हवा पुरसकून सी महसूस हो रही थी। उसने स्पीकर पर म्यूजिक लगाया। वो तैयार होकर आई तो वो दोनों मध्यम मौसीकी में एक दूसरे की आंखों में खो गए। मोहब्बत की खामोश जबान में सब कुछ कह दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।